Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today, we are going to cover a poetry, The World is Too Much with Us, written by the most popular romantic poet, Wordsworth. Let us proceed to the video now. Let us know about Wordsworth. Wordsworth को one of the greatest founders माना जाता है English romanticism का and the most central figure and important intellectuals in the history of literature. Wordsworth romantic poet थे along with Samuel Taylor Coleridge, and he helped to launch the romantic age in English literature with their joint publication of lyrical ballads in 1798. 18th century एक ऐसा पीरियड था in the world history that started industrial revolution. बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मैनुअल लेबर कम होकर धीरे धीरे फैक्ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा था, उसी से रिलेटेड है. और व्हेन वी गेट इन्वॉल्व्ड टू मच इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स, किस तरीके से हम लोग नेचर को हार्म करते हैं, दैट हैज बीन शोन इन दिस पोएट्री. It is a sonnet by English romantic poet William Wordsworth that we know. In it, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed, for being lost in materialism, and for distancing itself from nature. It was composed in 1802. ये पोइट्री जो है एक्सप्लोर करती है कि हाउ मैन इज गेटिंग टू मच materialistic approach of man is criticized. It also criticizes ignoring nature. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसके साथ ही साथ हम लोग नेचर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं. और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आती है यहाँ पर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ऑर्स. नेचर तो ये हमारा ही है, हम इस नेचर के हैं, हम इस नेचर को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम नेचर को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं इन दी मटीरियलिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज. जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ड्सवर्थ रोट द पोम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल इनोवेशन spanning the mid 18th to early 19th centuries that thoroughly transformed British life. तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने ब्रिटिश लाइफ को, यूरोपियन लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया था. बिकॉज इससे पहले सारा काम हाथ से होता आया था, सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल हैंडमेड हुआ करते थे. इंडस्ट्रीज आने के बाद मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हो गया था, प्लस पीपल वर इग्नोरिंग नेचर. Let us read and understand the meaning of first four lines. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste or pass. Let we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon. The materialistic world he talks about, that of city or jobs or all the financial obligations, यही सब हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और हमें बिल्कुल अनहेल्दी बना रहे हैं. हम अपनी पर्स जितनी की इंसान में कैपेसिटी है, ऐसा लग रहा है उसको वेस्ट कर रहे हैं. We are always, rushing here and there from one place to another place, and we earn money one day just to spend it the next. पैसे कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, getting and spending. The result of this is that we have destroyed a vital part of our humanity. हमने नेचर के साथ कनेक्ट होने का अपना टैलेंट खो दिया, नेचर जो कि हमारा ही था. In exchange for material gain, we are losing nature. We have given away all our emotions or heart. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. इंसान जो है उसकी ट्यूनिंग खराब होती जा रही है.
ओशियन है हमारे पास मून है, कितनी सारी नेचुरल चीजें हैं जो कि हमें पीस प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, नेचुरल फीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इस सी को, समुद्र को, मून को, फ्लावर्स को देखने की पावर खो दी है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट नेचर। नेचर के बारे में कह रहे हैं कि नेचर हमें मूव नहीं करता। Great God, I would rather be a pagan shackled in a clean out one. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn. My God, I wish that I was raised in such a culture जहाँ पर कि बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता, और आजकल ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चक्कर में रिलीजन आउटडेटेड हो गया है। This way, standing on the pleasant, patch of glass, I might be calmed and heartened by the image of ocean before me. अगर कभी पहले ऐसा हुआ होता तो शायद ये सी, आसपास का सारा एनवायरनमेंट मुझे पीस प्रोवाइड करता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। आई माइट सी द ग्रीक गॉड, मैं ग्रीक गॉड्स को देख सकता हूँ। ग्रीक गॉड के नाम पर वो प्रोटेस का नाम लेते हैं। ग्रीक गॉड प्रोटेस टेकिंग शेप बिफोर माई आईज, और हियर अनदर ग्रीक गॉड ट्रिटॉन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न। तो दो लेजेंडरी ग्रीक गॉड्स का वो नाम लेते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि उन गॉड्स के आने की जरूरत है। फाइनल 2 लाइंस में वो बात करते हैं दो पेगन गॉड्स की। प्रोटियस वाज थॉट टू बी एबल टू टेल द फ्यूचर, तो शायद प्रोटियस के आने का इंतजार कर रहे हैं कि इस धरती का फ्यूचर बताएंगे वो। ट्रिटॉन वाज द पेगन गॉड दैट वाज सेड टू बी एबल टू काम द सी, सी को शांत कर सकते थे, या फिर आसपास एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते थे। अब वो कहते हैं कि ना तो प्रोटियस है यहाँ पर, ना ही ट्रिटॉन है, जबकि इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है ये जानने की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे लिए फ्यूचर में क्या रखा हुआ है अपने पास, और ट्रिटॉन की जरूरत है आसपास शांति लाने की। तो दो गॉड्स को वो एड्रेस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस दुनिया में थोड़ा सा चेंज आ जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा शांत जरूर हो जाए, जिससे कि हम लोग नेचर को रिस्पेक्ट कर पाए। पूरी पोइट्री ही जो है लोगों को प्रवोक करवा रही है कि आप लोग नेचर का भी ध्यान रखिए। जरूरी है साइंटिफिक एडवांसमेंट करना, बहुत जरूरी है, लेकिन साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ नेचर को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। Now, question for you. Who are the gods mentioned in the poem? Aphrodite and Hestia, Eros and Athena, Proteus and Triton, Kronos and Dion. जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। Next, what line does the speaker suggest that we are concerned with materials? The world is too much with us, late and soon. We have given our hearts away a sordid boon. Little we see in nature that is ours, getting and spending, we lay waste our purse. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.